So far as the application CMA 3554/2024 of Miss Kawal, who claims to be a PTI candidate for the seats reserved for women in the National Assembly is concerned, it also has little significance in the perspective. We have approached and dealt with the present case. We may clarify that although we heard her counsel in the interest of justice as important questions of interpretation of constitutional provisions were involved, she is not a necessary party to the case. We are of the considered view that a contesting candidate or a returned candidate to the seats reserved for women or non-Muslim is not a necessary party to a dispute where the matter to be decided is which political party in what proportion is entitled to the reserved seats. The persons nominated by a political party for reserved seats or elected to such seat do not have a personal right to such seat. It is the right of the electorate guaranteed under Articles 17(2) and 19 of the Constitution, exercisable through political parties to have proportional representation in the reserved seats, not of the person nominated for or elected to such seats. Her appeal is dismissed. How can this review be entertained, sir? What is good for one is good for the other. And all 13 have dismissed. Sir, it was not her appeal. Her application was dismissed. Gee. Now she was the review petitioner, was the returned candidate under the notification which was quashed. जी ये जो रिव्यू पिटिशनर जिसकी आप कह रहे हैं कि वो नहीं फाइल कर जी थी, इसका नोटिफिकेशन क्वैश हुआ है जी, उसमें तो एप्लीकेशन दी। सो व्हाट सर, आपने ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया है, आपने ये प्रिंसिपल कि ये राइट है पॉलिटिकल पार्टीज की, ये प्रिंसिपल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ व्हाट इज गुड फॉर वन इज गुड फॉर द अदर। ठीक हो, या तो आप सबको अलाउ कर दें या आप किसी को अलाउ नहीं करें, ये तो नहीं हो सकता पिक एंड चूज करें। दैट्स द थिंग। शुड आई स्टॉप और शुड आई कंटिन्यू? नहीं, कंटिन्यू करें। आपने कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स करने हैं आप? नहीं सर, अभी तो मैं पहले पॉइंट पे मेंटेनेबिलिटी, नहीं, कितने पॉइंट्स? मेंटेनेबिलिटी के मेरे 3-4 पॉइंट्स हैं, उसके बाद मैं आऊंगा। इट विल टेक टाइम सर। वो तो जितना मर्जी टाइम ले, लेकिन कोई लिमिट्स भी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपको मालूम है सर, मैं अननेसेसरी डिले नहीं करता। वो जो मोहम्मद मदर साहब ने पैराग्राफ 15 पिछली जजमेंट की पढ़ी, उसमें यही कहा था कि किसी का राइट आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। क्या इस पैराग्राफ 118 में किसी का राइट रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया? यही तो कहते हैं कि जी जजमेंट में। सर मैं ये कह रहा हूँ कि all 13 have held, all 13. This is unanimous. Now either but my lord is asking question in the divi jurisdiction. वो तो कर दिया ना, अब वो जजमेंट के हवाले से पूछ रहे हैं वेदर ये राइट क्लोज नहीं किया उनका। मेरे ख्याल में नहीं किया। नन ऑफ द 118 के अंदर सर मेरी नजर में देखिए उनका केस अलग था, बट किसी को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी रिटर्न कैंडिडेट, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो उनको रिप्रेजेंट कर रही थी वो आपके सामने थी। मगर आप ये जो बात कहते हैं कि किसी को बनाने की जरूरत नहीं थी, दैट वुड बी दैट मे बी योर ओन व्यू ऑन दैट पॉइंट। नो आई विल प्लीज जी, इवन फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन फॉर्म फॉर द रिजर्व सीट by a woman or a non-Muslim, the entire procedure is same for filing nomination and everything. She has to and he has to go through the entire process as the person who is contesting the election of a National Assembly or the Provincial Assembly. And so if a person is filing from the beginning all the formalities as a general candidate, then how she has or he has no right to come? सर बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स खुद जीतते हैं, सेम होता है नहीं, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स इलेक्शन खुद जीतते हैं, उसका भी टाइम होता है कि रिजर्व सीट का आप फाइल करें। अरे रूल में है ना सर, एवरीथिंग इज देयर। सर मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को इलेक्शन जीतना होता है, इनको अलॉट होती है सीट। बिल्कुल सही बात है आपकी, आई एम नॉट डिनाइंग टू दैट, इट इज अ लीगल प्रोविजन, बट दे हैव टू फाइल देयर नॉमिनेशन फॉर्म, एवरीथिंग इज द सेम। After submitting the list of the reserve seat by the party, they have to comply with each and every formality like the same manner as if a person is contesting the election through poll. So there is no issue. Why I am asking this to this, that if the right is restricted on this point that they have no right to come, then every individual have no right to come except the party. No, if there is a entity which represents them,
which is before your court, then no element under that entity can claim an individual For the right. purpose of jurisdiction under Article 199, Ji. whether the person includes, everything is included in the person. Person means a person who is aggrieved by some action of the department or the देखिए, जिस mannerism तरह- in the writs can be filed in the high courts. जिस तरह आप देखिएगा सीपीसी में सेक्शन Why we should restrict the rights of all? Why it is not open? This is what we are understanding this. इट विल ओपन फ्लड गेट्स। फिर हर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर कहेगा भाई मेरा राइट है कि मैं पार्टी बनूं। Why he is going to file election petition? Why any party is not filing the election petition? जब आपके सामने कोई अपील आएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन आएगी और उसमें एक पार्टी होगी तो वो उसका हर मेंबर होगा और वो कहेगा कि मुझे पार्टी बनना No, है। if this analogy is applicable, that only and only the political party has a right to invoke the jurisdiction of the court, then what is the purpose of Article 225 and the election petition? Suppose you are contesting the election and you win or you lose, the other party may file the election petition. Then you even say that this is the political party right to file the election petition because their candidate has lost Sir, or some rigging and क्योंकि इलेक्शन एक्ट में ये राइट कैंडिडेट्स को दिया गया, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दिया। अदरवाइज देखिए ना, आपकी बात अगर मानी जाए तो वहां तो कमल शौजब की पार्टी भी बिफोर कोर्ट नहीं थी। उसमें तो जरूरी नहीं थी कि उसको फ्रीक बनाया जाता, कम से कम उसे सुन लिया जाता या उसकी बात जो है। What is your Sir, it doesn't matter. मेरे ख्याल में It doesn't matter. They have never. Note It कीजिए। doesn't matter. That is why जो बेसिक या माइनॉरिटी जजमेंट में है कि अगर वो पार्टी बन के उसके बाद स्क्रूटनी होती तो इवेंट्स मुख्तलिफ होते। ये जो बेसिक उनका ऑब्जेक्शन है कि जी जो पार्टी नहीं थी, जो प्लीडिंग्स कोर्ट के, अब सपोज बहुत सारे पार्टी थे रिटर्न कैंडिडेट्स। रिटर्न कैंडिडेट्स उस पार्टी के थे ना जिनको अब कहा नहीं, नहीं। एलिजिबल है, उनमें से तो कोई अपोजिंग पार्टी के कैंडिडेट, उनमें से किसी ने रिव्यू नहीं फाइल मेरे ख्याल किया, में सिर्फ 3 लोगों ने किया। कोई पार्टी नहीं था उसमें। बिल्कुल था। आप ओरिजिनल पिटिशन कौन, देखिए। किस में से? जी। फैसल लिस्ट देखे ये हम बिल्कुल पार्टी था। तहरीक इंसाफ क्योंकि से कोई नहीं, तहरीक इंसाफ नहीं और तहरीक पार्टी इंसाफ का कह रहे हैं ना। जिनके हक में नोटिफिकेशन इशू हुआ था वो पार्टीज थे। उनका कोई नहीं कह रहा, उनका नहीं है मसला है। अब जो जिनको मेजॉरिटी जजमेंट ने जिनके हक में किया है, दे वर नॉट बिफोर द कोर्ट। अगर वो कोर्ट के सामने होते, कम से कम ये ऑब्जेक्शन ना होता ना। दूसरी बात यह है कि हमने जो अपने माइनॉरिटी व्यू में लिखा है, जो भी रिकॉर्ड रिलाय किया है बाय द मेजॉरिटी जजमेंट, दैट वाज नॉट ए रिकॉर्ड और एडमिसिबल एविडेंस इन द आई ऑफ लॉ, क्योंकि वो किसी तरह से प्रेजेंट नहीं हुआ। एक कैंडिडेट जो है वो 4 नॉमिनेशन पेपर्स दे सकता है। कौन सा नॉमिनेशन पेपर प्रेजेंट किया इलेक्शन कमीशन ने, नो वन नोस। और हमने तो दानिस्ता देखा ही नहीं उस रिकॉर्ड को, which was not admitted one before the court. Sir, I would say that it was, but I will come to that. That was not the part of the record of the list. मेरे ख्याल में इस मसले का हल ये है कि कोर्ट पर छोड़ दें कि कोर्ट अगर कंसीडर करे कि किसी का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, मुतासर हो रहा है, केस टू केस देखा जाएगा। जब सर मैंने अपनी सबमिशन इस पे कर दी है। मैंने अपनी, ये मेरा पहला ऑब्जेक्शन है।